Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video, we are going to see most of the research designs and the MCQs relevant to it. So after viewing this video, आप सभी के जो concepts है regarding research design वो clear हो जाएंगे and as well आप सभी के जो ideas है regarding MCQs of research design वो भी काफ़ी सारे clear हो जाएंगे. You will get a proper idea. So before starting this video, I want to tell you that कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज इन द एमपेट एग्जामिनेशन द पार्ट ए इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50% मार्क्स है आउट ऑफ 100%, राइट. एंड दैट्स वाई इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एमपेट एग्जाम देन यू हैव टू score more and more marks in research methodology section, right? And that's why with this course आप सभी लोग MPET एग्ज़ाम को guaranteed qualify कर सकते हो. So in this course आप सभी को full syllabus video lectures मिलते हैं जिसमें theories and MCQs दोनों भी available है. आपको इसमें full syllabus notes and mock test भी मिलते हैं. ऐसे हमारे पास actually 10 mock tests available है and each mock test contains 40 MCQs and that's why overall आपके इसमें 400 MCQs cover हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हो जाए एंड एज वेल यू विल गेट 80% MCQs आउट ऑफ 100% MCQs इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन फ्रॉम दिस. ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स आप सभी को इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना चाहिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है, राइट. एंड इन दिस कोर्स हम सभी ने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एंड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर द syllabi of your research methodology section. Okay, so students, let us start with our today's session. Now the question 1 is, which of the following are the complete experimental research designs? यानी कि इनमें से कौन से complete experimental research designs है? So factorial design, one group after only design, then before after design with one experiment and two control groups, Latin square design, then one group before after design. Choose the correct answer from the options given below. So complete experimental research designs are nothing but the protocols and ऐसे protocols जो आप experimental research design में use करते हो. So from these different options, Latin square design, then factorial design and before after design with one experiment and two control groups are the complete experimental research designs, and that's why the correct answer for this is 1, that is ACD only. So let me explain you what are these. So first of all let us see what is Latin square design. So basically this design addresses systematic variation that is not caused by intended treatment. So basically Latin square design हम सभी को एक systematic variation के लिए टेस्टिंग के लिए हमें हेल्प करता है. सो ये जो सिस्टमैटिक वेरिएशंस होते हैं ये सिस्टमैटिक वेरिएशंस किसी भी प्रकार के इंटेंडेड ट्रीटमेंट से नहीं होते हैं. ओके, एंड लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमें ये सारे वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. सो अभी तक तो आप यही याद में रखो कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज़ द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस. नाउ व्हाट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन? So students, factorial design basically consists of two or more factors. Okay, and that's why इसका नाम है factorial design. So basically these factors actually they have multiple discrete possible values and it aims to identify main effects and interaction between various factors. So ये जो factors होते हैं actually इन factors के multiple values होते हैं and that's why factorial design का जो main aim होता है वो यही होता है कि जो effects होते हैं and जो interactions होते हैं between various factors उनको identify करना. ओके, एंड बिफोर आफ्टर डिज़ाइन विथ वन एक्सपेरिमेंट एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स का मतलब होता है कि आप इसमें दो कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हो. ओके, कंट्रोल ग्रुप्स यानी कि ऐसा ग्रुप ऐसा ग्रुप जिनके पार्टिसिपेंट्स को आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हो, एंड जो वन एक्सपेरिमेंट यानी कि
एक ही ग्रुप ऐसा होता है जिनको आप ट्रीटमेंट देते हो. सो ये तीनों ग्रुप्स आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में यूज़ करते हो. एंड बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन यानी कि बिफोर के रीडिंग्स आप लेते हो, मतलब बिफोर ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर डिज़ाइन यानी कि आप आफ्टर ट्रीटमेंट के भी रीडिंग्स यहाँ पे लेते हो. एंड यू बेसिकली यू कंपेयर बोथ द ग्रुप्स और बोथ द ट्रीटमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर. Okay, and that's why here the correct answer is 1. In which type of qualitative research designs individual stories to describe the lives of people are explored? So इनमें से कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में एक एक पर्सन के जो इंडिविजुअल स्टोरीज होते हैं, ओके, इनको आप डिस्क्राइब करते हो ताकि आप लोगों के जो उनके जो लाइफ होते हैं, उनके जो लाइव्स होते हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सके. ओके, सो वेदर इट इज़ एथनोग्राफी, वेदर इट इज़ ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, वेदर इट इज़ सिम्बॉलिक इंटरैक्शन, और वेदर इट इज़ नरेटिव रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज nothing but 4, narrative research, because as the name suggests na, narrative. सो नरेटिव रिसर्च इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जिसमें आप सभी लोग इंडिविजुअल स्टोरीज़ को यूज़ करके लोगों के लाइव्स को डिस्क्राइब करते हो. सो बेसिकली यू एक्सप्लोर द इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ द पीपल. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द नरेटिव रिसर्च. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन का जो अप्रोच होता है, द अप्रोच, ओके, दिस अप्रोच इज एक्चुअली relevant to revive of literature or to revive the literature. Okay, so basically आप यहाँ पे लिटरेचर को रिवीव करके ये सारे जो इंडिविजुअल स्टोरीज होते हैं इनको आप एक्सप्लोर करते हो. ओके, एथनोग्राफी तो आई होप सो आप सभी को पता है व्हाट इज़ दैट. एथनोग्राफी इज़ नथिंग बट अ रिसर्च जिसमें एग्जैक्टली रिसर्चर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में स्टडी करता है. सो बेसिकली ही वांट्स टू स्टडी द कल्चर ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी और कल्चर ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप और सोसाइटी. ग्राउंडेड थियरी रिसर्च इज़ नथिंग बट बेसिकली दिस इज़ अ रिसर्च जिसमें आप थियरी को डेवलप करते हो. Okay, and what is symbolic interaction? What is this? So basically symbolic interaction focuses on relationships among individuals in society. So basically ये सोसाइटी में जितने भी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप पे फोकस करता है. ओके, and it involves exchange of meaning through language and various symbols. and जैसे कि यहाँ पे symbolic नाम है, so यहाँ पे language and symbols के बीच में काफ़ी सारे exchanges का भी इस्तेमाल किया जाता है. okay, and that's why here the correct answer is 4. Following activities are related to the conduct of experiment in social research. So इनमें से कौन से activities आप actually social research में use करते हो जब भी आप experiments करते हो social research में. Okay, so control the experimental environment, pilot test, revise and test, empathy with the participants, then praising the good qualities of the participant, specify the treatment levels, choose the most appropriate answer from the options given below. So देखो students, social research. So social research ये दो प्रकार का research होता है actually. So first of all it is qualitative research, यानी कि आप qualitative method से भी social research को कर सकते हो, and as well quantitative research मतलब इस method से भी आप कर सकते हो. Okay, but when it is like experiment in social research, then उसमें बेसिकली आप क्वांटिटेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो. सो वेरेवर देयर इज़ अ एक्सपेरिमेंट इन द आई मीन टू से कि सोशल रिसर्च, देन उसमें आप एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हो बेसिकली. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर आप एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो एंड इन दैट एनवायरनमेंट आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ऑन द सोसाइटी और ऑन द इंडिविजुअल्स जो भी कुछ पार्टिसिपेंट्स है आपके स्टडी में. देन यू डू द पायलट टेस्टिंग. पायलट्स टेस्टिंग यानी कि द शॉर्ट टेस्ट. ओके, और यू कैन से कि शॉर्ट रिसर्च होता है जो आप किसी भी
कंप्लीट रिसर्च के पहले करते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आगे का रिसर्च कितना फिजिबल होने वाला है. सो यू विल गेट अ इनिशियल आइडियाज कि रिसर्च आपका कैसे बनेगा. एज वेल यू रिवाइज सम स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस. आप टेस्ट भी करते हो काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कि हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, देन आप वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को टेस्ट करते हो, एंड एज वेल यू स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स. सो आई मीन टू से कि किस ग्रुप को आपको ट्रीटमेंट देना है, किस ग्रुप को आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है, ये जो सारी चीज़ें होती है वो आप पहले से ही स्पेसिफाई करते हो. ओके, जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करते हो इन योर सोशल रिसर्च. Okay, and that's why here the correct answer is 4, that is A, B and E only, because participants के साथ empathy create करना, then participants के good qualities को praise करना, ये कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप actually करते हो जब भी आप experiments करते हो in social research, and that's why ये तो दोनों eliminate हो गए, and that's why the correct answer is 4. Given below are two statements, statement 1 and statement 2, and इनमें से कौन सा statement सही है and कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पे देखना है. So let us focus on statement 1 first. A research design is blueprint that guides the use of a research method and analysis of data. So students, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि what is research design. So basically students, research design ये एक conceptual framework होता है of your whole research study. So इसका मतलब ये होता है कि this is the outline and protocol of your research, and that's why it is also called as the blueprint. Blueprint is nothing but the outline, okay, or you can say कि a specific design. ओके, एंड दिस रिसर्च डिज़ाइन हम सभी को गाइड करता है हमारे पूरे रिसर्च प्रोसेस में. सो ये स्पेसिफिकली हमें रिसर्च मेथड्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है. मतलब हमें कितने सारे रिसर्च मेथड्स को यूज़ करना चाहिए इन आर रिसर्च स्टडी अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च स्टडी. ओके, एंड एज वेल हमें कौन से डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर को या फिर डेटा एनालिसिस टेक्निक को हमें इस्तेमाल करना है, ये भी हम लोग रिसर्च डिज़ाइन में ही देखते हैं. वी थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई द statement 1 is correct here. Okay, statement 2 is a research design is no way connected with the expression of causal relations between variables. Okay, so students, let us see the example. Experimental study. Okay, and before doing experimental study आप सबसे पहले experimental research design को देखोगे. So basically this is the outline of your study, right? And experimental study में हम सभी लोग दो variables को पहले study करते हैं, and these two variables are independent variable and dependent variable. And that's why अगर आपको study करना है then you should know, right, exactly what you are going to study in the research, right? And that's why आपको ये सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है कि whether there is really the relationship between the two variables. I mean to say कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में सच में कोई रिलेशन है क्या, कोई को रिलेशन है क्या, कैन आई गेस एनी रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई उसके बाद मैं रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट कर सकूं. एंड दैट्स वाई रिसर्च डिज़ाइन का इसके साथ कनेक्शन होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, एंड दैट्स वाई द स्टेटमेंट 2 हियर इज इनकरेक्ट. ओके, all of you understood, and that's why the correct answer to this question is 3, because 3 में लिखा है कि statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay, a university teacher intends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be most appropriate in the context? So एक university teacher है एंड उसको स्टडी करना है कि स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड उनके अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप है, एंड दीज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली रूरल. ओके, मतलब वो रूरल बैकग्राउंड से है. सो अगर
यूनिवर्सिटी टीचर को इसके बारे में स्टडी करना है, देन वो कौन से रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करेगी और करेगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, देन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, देन हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, देन सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। देखो यहाँ पे लेवल ऑफ एस्पिरेशन के बारे में देखना है एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन के बारे में देखना है, राइट। एंड दैट्स वाई ये दोनों भी चीज़ें, यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, ये होके गई है, मतलब ये पास्ट है। यू कैन से कि दिस इज द रीसेंट पास्ट, बिकॉज अगर लेवल ऑफ एस्पिरेशन हुआ नहीं है देन हाउ वी कैन स्टडी इट, राइट। एंड दैट्स वाई यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ओके। उसमें कॉजल वेरिएबल है, मतलब जिसकी वजह से कॉज हुआ है वो वेरिएबल है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एंड जो अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन है ये दूसरा वेरिएबल है, एंड दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट वेरिएबल। सो यहाँ पे आपको ये जानना है कि इस इफेक्ट का कॉज ये है, राइट। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस कॉज ऑन दिस इफेक्ट, ये आपको देखना है। सो इफ यू वांट टू स्टडी दिस देन यू नीड टू यूज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, बिकॉज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन में हम रिसेंट पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सो इफ यू वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ कॉज इन द स्टडी, मतलब ऐसा कॉज ओके जो पहले से ही हो चुका है, एंड ऐसा कॉज जिसके ऊपर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो देखो यहाँ पे लेवल ऑफ एस्पिरेशन के ऊपर टीचर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल टीचर वांट्स टू स्टडी इट। सो हाउ ही कैन स्टडी इट? ही कैन ओनली select the level of aspiration and only select the achievement of rural children, and after that ये उसके ऊपर स्टडी करेगा। Okay, all of you understood, and that's why here the correct answer is second. Okay, experimental research design, I hope all of you understood what is that. Historical research design में आप सभी लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हो, सो द पास्ट इवेंट्स। ओके, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में आप क्वेश्चनेयर्स बना के उसके ऊपर आपको पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मेक द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च स्टडी। Okay, and that's why here the correct answer is second. Research design that needs to collect factual information on a continuing basis is classified as. So इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जिसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड वो भी आपको कंटिन्यूइंग बेसिस पे कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। Okay, so whether it is longitudinal study design, pre and post study design, cross sectional study design, double control study design. So if you see the names here, so the correct answer for this is one, that is longitudinal study design, because longitudinal study design is nothing but the design जिसमें आप एक ही इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हो, एंड वो भी आप काफ़ी समय तक करते हो, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड दैट्स वाई अगर आपको कंटिन्यूइंग बेसिस के ऊपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन यू कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस स्टडी डिज़ाइन, बिकॉज ऐसे इंडिविजुअल्स को आप सर्टेन इंटरवल्स के बीच में बुलाते हो एट योर स्टडी सेंटर, एंड उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपको रियल टाइम में मिलते हैं, एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द रियल टाइम इज नथिंग बट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द फैक्ट, राइट। एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज वन। एंड लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली आपको कंटिन्यूइंग बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज दिस स्टडी इज गोइंग ऑन अ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड एज वेल इंडिविजुअल्स बार बार आपके स्टडी सेंटर में आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द कंटिन्यूइंग प्रोसेस, राइट। इसमें कोई भी स्टॉप नहीं है किधर भी, राइट। एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज वन। प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइन, यानी कि प्री यानी कि बिफोर द ट्रीटमेंट, पोस्ट यानी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन यानी कि एक ही समय में आप काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर स्टडी करते हो,
एंड डबल कंट्रोल स्टडी यानी कि 2 कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में किया जाता है. ओके. Which of the following belong to the category of true experimental design? So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे experimental designs और you can say कि सिर्फ research designs के names दिए हैं. So इनमें से कौन से true experimental research designs है? One group pre-test post-test design, 2 groups randomized subjects post-test only design, 2 groups static designs, randomized groups pre-test post-test design, 1 group time series design. So देखो अगर कोई भी research design ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है देन उसमें हमेशा आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हो. ओके, यू रैंडमली असाइन द पार्टिसिपेंट्स एंड हमेशा इसमें 2 ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है. उसमें से एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. Okay, and that's why here the names for true experimental designs are, first one is true experimental designs are here 2 groups. Okay, randomized subjects post test only design. Second is 2 groups randomized matched subjects post test design. Okay, or you can say कि post test only design. Then third one is randomized groups pre-test post-test design. Pre-test post-test design. The fourth one is randomized Solomon 3 group design, and the last one is randomized Solomon 4 group design. That's why here the correct answer is 3, that is B and D only, because from these 5 true experimental research designs only here B and D are the true experimental designs. यानी कि 2 groups randomized subjects post test only design एंड रैंडमाइज्ड ग्रुप्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बोला था कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमेशा पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है. सो देखो यहाँ पे रैंडमाइज्ड वर्ड है एंड यहाँ पे भी है रैंडमाइज्ड वर्ड. सो बाय विविंग दिस वर्ड्स यू विल गेट टू नो कि ये दोनों भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस है. एंड एज वेल जब भी आप ये पूरे सेंटेंस और यू कैन से कि पूरे वर्ड्स को, इन सारे वर्ड्स को जब भी आप देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है. देखो 2 ग्रुप्स रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट्स यानी कि यहाँ पे आप 2 ग्रुप्स का इस्तेमाल करोगे एंड रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट्स यानी कि आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करोगे. पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन यानी कि आप ट्रीटमेंट देने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड उन्हीं रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करोगे. देन रैंडमाइज्ड ग्रुप्स यानी कि रैंडमली आप असाइन करोगे राइट पार्टिसिपेंट्स को. प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यानी कि आप प्री टेस्ट यानी कि बिफोर द ट्रीटमेंट के रीडिंग्स भी आप यहाँ पे लोगे एंड एज वेल पोस्ट टेस्ट यानी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट ये भी रीडिंग्स आप यहाँ पे मेजर करोगे एंड यू विल कंपेयर बोथ द रीडिंग्स हियर. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज थर्ड. सो मैंने आपको यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस के नाम प्रोवाइड किए हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड टेक द नोट्स फ्रॉम दिस. ओके, in 2 groups randomized subjects post only research design, which of the following may be the source for jeopardizing validity? So देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 2 groups randomized subjects post only research design. So जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि this is the true experimental research design. ओके, सो इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन में इनमें से कौन सा
ओके, जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी का सोर्स है। जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि बाहर की वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप कितने हद तक आपके रिसर्च के रिजल्ट्स दूसरे किसी सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो। ओके, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो लेट अस सी हियर डिफरेंट ऑप्शंस: pre-testing procedures, measuring instruments, interaction of selection and the independent variable, reactive experimental procedures, statistical regression. So first of all students, you need to know कि ये रिसर्च डिज़ाइन एग्जैक्टली होता क्या है। सो टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स तो यहाँ पे होंगे ही। रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि आप रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन कर रहे हो। एंड पोस्ट टेस्ट ओनली, यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद के रिजल्ट्स को आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सो टू ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे दो ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से पहला होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जिनके पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। एंड सेकेंड इज कंट्रोल ग्रुप, यानी कि यहाँ के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। सो इसमें से ये दोनों भी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, इन दोनों भी पार्टिसिपेंट्स को आप रैंडमली असाइन करोगे। ओके, एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, सो यू विल सी दिस रिजल्ट, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दिस इज विल बी योर फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो दिस इज ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिसर्च डिजाइन। सो इस रिसर्च डिजाइन में एक्सटर्नल वैलिडिटी का सोर्स कौन सा है? ओके, सो द external validity sources over here are reactive or interaction effect of testing। मतलब टेस्टिंग के इफेक्ट्स कैसे हैं, मतलब वेदर टेस्टिंग के इफेक्ट्स रिएक्टिव है या फिर इंटरैक्शन है। ओके, देन द सेकेंड इज दैट कि इंटरैक्शन इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन बायसेस एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। ओके, मतलब सिलेक्शन बायस का अगर कोई इफेक्ट है या नहीं, एंड एज वेल एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का कोई इफेक्ट है या नहीं। सो आई मीन टू से कि सिलेक्शन बायस का इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। एंड थर्ड वन इज दैट रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स। ओके, मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स के रिएक्टिव इफेक्ट्स अगर कोई है तो। ओके, एंड लास्ट वन इज मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफियरेंसेस, मतलब अगर आप यहाँ पे एक से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स का इस्तेमाल करोगे, देन उनके बीच में अगर कोई इंटरफियरेंस होता है तो देन उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? सो दैट इज दैट, यानी कि मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब होता है कि इंटरफियर करना, राइट? That's why students, the correct answer over here is 3, that is C and D only, because देखो interaction of selection and the independent variable and reactive experimental procedures, so ये दोनों भी external validity के sources हो सकते हैं। and I want to tell you that कि इन चीज़ों की वजह से आपके रिसर्च स्टडी में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो जाएगा, या फिर आई कैन से कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स वाई जब भी सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी इंटरैक्शन होता है, देन ऑब्वियसली दिस विल बी द सोर्स ऑफ योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। एंड एज वेल अगर रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, देन उससे भी कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल वैलिडिटी पे इफेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड। द एलिमेंट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन आर, देखो इनमें से कौन से क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के एलिमेंट्स है। एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, ये तो हमने इसी वीडियो में देखा था, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट अस सी हियर absence of quantitative data, domination of qualitative data, a sample of cases with interrelated variations, data are collected at a single point in time, examination of relationships between variables। देखो
क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन ये काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर एक ही टाइम पे किया जाता है एट अ वन टाइम. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे यू नीड टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ सैम्पल्स. ओके, एंड ऐसे सैम्पल्स जिनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटर रिलेटेड वेरिएशंस हो सके. ओके, एंड दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन शुड बी योर एलिमेंट. देन जैसे कि हमने देखा कि डेटा आर कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज ट्रू, डेटा हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कलेक्ट करते हैं. सो दिस इज योर अनदर एलिमेंट. एंड एज वेल हम लोग वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं उसको हम लोग एग्जामाइन करते हैं. सो दिस इज योर अनदर एलिमेंट, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड, सी डी ई एंड ई ओनली. सो देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा तो होता है, राइट, वो होता है, एंड दैट्स वाई ये तो एलिमिनेट हो गया. एंड क्वालिटेटिव डेटा डोमिनेशन है उसका, मतलब वो डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द डेटा ओवर हियर इज क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव. ओके, दैट्स वाई ये भी एलिमिनेट हो गया, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड. A pilot study is also called a descriptive study, feasibility study, correlation study and explanatory study. So students, this is actually a homework question to all of you, and आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि पायलट स्टडी को हम सभी लोग दूसरा नाम क्या देते हैं. व्हाट इज द अनदर नेम फॉर पायलट स्टडी? बिकॉज व्हाट इज पायलट स्टडी ये तो हमने आज ही के सेशन में देखा. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, I want from all of you that you need to know कि what is the another name for pilot study. Okay, and this is your homework question, and you are going to give me the answer to this question in the comment box. Okay, so thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी हमने इसी सेशन में देखा. So still if you have any doubts you can ask me in the comment box. Fine. Okay, now I will end this session.